Hi, you guys, welcome back to my channel. This is Vani, and I'm doing it yet another episode of the Splitsvilla X6 couple review thing I'm doing. And today I'm talking about Akyam Akmal you already know the hookah couple, the shisha couple, not that hookah, but Nita Road wala hookah. So they are going very popular with this song, and we are talking about Niharika and Saurabh. And आज मैंने अपना mic ऐसे नहीं रखा है because I got really bored of it. मेरा हाथ थक जाता है तो I was just like, ugh. And let's start. When Niharika and Saurabh came to the show, Niharika and Saurabh were in separate villas. So Saurabh was in the Pyar villa, Niharika was in the Pesa villa. Both of them had separate connections for the first week before they actually met each other. Well, he had a liking towards Sadaf. He was not with Sadaf because Sadaf was too much in Tain. We are just gonna get that in the next episode, Sadaf and Tain for sure. Saurabh is also known as the Rajma Chawal guy. I don't know स्पिट्सविला ने इसको इतना stretch क्यों किया. I mean, her point पे whenever Saurabh was getting introduced, I don't know what this joke was about that Rajma Chawal thing. मतलब even I like Rajma Chawal does not mean that every guy that likes Rajma Chawal I like everybody. स्पिट्सविला ने बहुत overhype कर दिया था this Rajma Chawal thing. Saurabh is basically someone that is like I've seen on the screen for the first time, and basically he's a model. He has not done too many shows. I think he's been working for a long time, but ये show में मुझे वो पहली बार दिखा. And he's a model. He does acting a little bit here and there. The first week when he tried to make connections, he made it with Sadav. Then the villa shifted, so he went to the Pesa villa. अब मैं पैसा विला पे आती हूँ. Niharika was a girl when you first saw her on screen, you would think she's the most strongest contestant out there. वो जब भी challenges करती है, she's like super passionate about it and she's strong enough to do those challenges for sure. Niharika is an ex-roadie, by the way. She was in roadies before. I saw her audition video where she was like so slim and she has made her body so beautifully. I think her body is finesse. Her tattoos, oh my god, like don't get me started. मुझे उसके tattoos बहुत अच्छे लगते हैं. सौरभ महादेव वाला tattoo I really loved. I think ये दोनों इतने साथ में इतने अच्छे लगते हैं. I think they complement each other जो बहुत couples नहीं कर पाते हैं. तो I really like them together. I think वो एक दूसरे को उनकी एनर्जीज भी ऐसे मैच करती है बिकॉज मैंने एक इंटरव्यू सुना था जिसमें सौरभ बता रहा था दैट दे बिलीव इन न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी. मैं भी उन चीजों में बहुत बिलीव करती हूँ. आई जस्ट कुड कनेक्ट विद द कपल मोर. इज वन थिंग दो कि स्पिट्सविला ने इतनी उनकी जर्नी दिखाई नहीं. मतलब जब भी हम सौरभ निहारिका को साथ में देखते हैं इधर इन अ चैलेंज और अ टास्क एंड उसके अलावा कहीं देखा जाए तो दे आर जस्ट मेकिंग आई कॉन्टैक्ट. मतलब उनका वो आई कॉन्टैक्ट इंटेंस आई कॉन्टैक्ट वाज जस्ट क्रेजी. सो अबाउट निहारिका. Niharika was in Thavila, so she like did not want to make a connection, and I think she did make a connection with somebody. I just don't remember their name. They're not that relevant right now. So I don't remember and I don't really care. So, but their connections were not strong in either of the villas. The swap happened of the boys. Saurabh came to Paisa Villa. Ab Saurabh made a connection with Preet actually. So Preet is the red hair girlie. Basically spoke and I think वो game के लिए ही कर रहे थे. I again did not think they actually had a connection. जब तक ये लोग पैसा विला में थे ये मतलब सौरभ निहारिका I think they only just spoke in like friend type of because Niharika was playing with Yogesh at that time. Now I spoke about Yogesh in the last video. तो वो सिर्फ गेम के लिए खेल रहे थे. उन्होंने एक टास्क किया था वो स्लाइडिंग वाला था. डोंट रिमेम्बर यू गाइस. आई डोंट वो पता नहीं कुछ उठाना था एंड दिल में मारना था. दैट वाज अ टास्क दैट वाज हैपनिंग. तो इन्होंने बहुत अच्छा खेला था योगेश एंड निहारिका ने. बोथ रोडीज तो ऑफ कोर्स दोनों का टास्क लेवल होगा ही एट अ स्टैंडर्ड. एंड ब्रो आई थिंक दे लुक रियली गुड टुगेदर अगेन. एंड जब मर्जर हुआ मर्जर के बाद 2-3 दिन के बाद प्रीत एंड सौरभ जस्ट डिस्कनेक्टेड क्योंकि प्रीत actually had a liking towards Vishu. Niharika and Saurabh started talking again. Splitsvilla ने दिखाया नहीं how their connection was made. वो लोग बातें करते हुए नहीं दिखे. They just came together in one challenge. And तब से वो हमें दिखे challenges में साथ. Splitsvilla ने इतना story किसी का है नहीं to be honest. क्योंकि मेरे को लगा कि वो अचानक से साथ में आ गए. There was like no कि उनका कुछ cute moments दिखाया जाए. Nothing. I did not see any of that. But they came together. They performed a lot of challenges. बहुत सारे उन्होंने जीते हैं and actually performed very very well together. I think individually Saurabh was lacking behind a little bit जब वो प्यार विला में था first week. इतना कोई contribution ही नहीं था.
थिंक जब ये लोग साथ में आए, इन्होंने इतने अच्छे अच्छे चैलेंजेस करे ना। सौरभ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ब्रदरहुड। ये भाईचारा गैंग में बताती हूँ आपको कौन कौन है इसमें। इस योगेश रावत, हिमांशु, इस है सौरभ बेबी, एंड एक और बंदा था जो अनीशा के साथ था, जिसका मैं बिल्कुल नाम भूल चुकी हूँ। अगेन नॉट रेलेवेंट इनफ, सो सॉरी मैन, बट यू आर जनरली आई डोंट सी यू एनीवेयर, आई डोंट रियली केयर अबाउट यू। बट 4 लड़कों का एक ग्रुप था जिसमें ये एक दूसरे के लिए वोट करते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, एक दूसरे के साथ आगे जा रहे थे गेम में। बेबी वॉज अ पार्ट ऑफ इट। नाउ इनका आर्ग्यूमेंट मोस्टली जब निहारिका एंड सौरभ का होता था, इट यूज्ड टू बी अबाउट दिस भाईचारा गैंग। निहारिका यूज्ड टू बी लाइक, मेरे को अपना इंडिविजुअल खेलना है, तो अपना भाईचारा संभाल। एंड सौरभ यूज्ड टू बी लाइक, मेरे भाई। अब भाई मेरे को लड़कों का नहीं पता, आई डोंट नो भाई 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 में ये लोग क्या क्या गिव अप कर देते हैं, बट ओनली फेल्ट लाइक दे वर ईच अदर्स वोट बैंक। बट अगेन सौरभ ने अपनी दोस्ती नहीं दिखाई जब वो स्प्लिट कॉइन्स वाली चीज हुई, व्हेन हिमांशु कुड नॉट प्ले द सेमीफाइनल्स बिकॉज उसको किसी ने स्प्लिट कॉइन्स ही नहीं दिए, तो उधर ही दिख गया उनका क्या भाईचारा था। आई डोंट रियली हैव मच टू से अबाउट इट। द फैक्ट कि मुझे तो इतना कुछ उसमें नहीं दिखा कि उनका इतना अच्छा भाईचारा था। उनकी दोस्ती में भी बहुत बारी सवाल उठे हैं। दे हैव प्रूव्ड ईच अदर्स फ्रेंडशिप अ लॉट ऑफ टाइम्स, बट एंड में जाके तो कबाड़ी हो गई वो दोस्ती। Apart from this, they are the finalist of the show. They could win the show. There is a big possibility क्योंकि ये बहुत अच्छे परफॉर्मर्स है। Like I've said, they are literally, जब भी वो साथ में आते हैं, ऐसे वो आंखों में आंख डाल के ऐसे ऐसे टॉस करते हैं, ऐसे ऐसे। इट जनरली गिव्स ऑफ अ वेरी ट्रू कनेक्शन वाइब, समझ रहे हो? लाइक उनका आई कांटेक्ट इतना इंटेंस होता है। मैंने इतनी एडिट्स भी देखी थी जो मेरे पास रिसेंटली आ रही थी, जिसमें देर आई मतलब वो कुछ भी टास्क करते थे तो ऐसे ऐसे देखते थे एक दूसरे को, लाइक यू नो। एंड इट्स अडोरेबल, इट्स सो क्यूट, एंड उनको जेन्युइनली दिखता था दैट दे लाइक ईच अदर इन द शो। बट मुझे यही लगता है कि जब तुम शो में होते हो ना, तुम क्या ही कमिट कर सकते हो, बिकॉज अगेन तुम गेम का सोच सकते हो या फिर तो कनेक्शन बना सकते हो, यू कैन डू आइदर। तो आई थिंक जी चोज द गेम फॉर दैट टाइम, एंड अब जब बाहर वो आ चुके हैं, तो नाउ दे आर परस्यूइंग ईच अदर। लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी सराउंडिंग दिस कपल, क्योंकि आई थिंक हर कपल ही इस सिलसिला में बहुत कंट्रोवर्सी में रहा है। सो दिस इज येट अनदर कपल। बेसिकली सौरभ के साथ एक कंट्रोवर्सी चल रही है जिसमें रूरू, दिस गर्ल दैट आई स्पोक अबाउट, जो वाइल्ड कार्ड आई थी इन स्प्लिट्सविला, so she brought his ex Apurva to her life and they spoke about Saurabh. So there was an allegation कि Saurabh cheated on Apurva during the show. तो वो बोला जा रहा है कि जब during the show Saurabh was dating Apurva allegedly। ठीक है, मुझे नहीं लगता। ठीक है, मुझे नहीं लगता। आई थिंक ही हैज ऑल्सो क्लियर्ड इट एक दो स्टोरीज लगा के कि वी वर नॉट डेटिंग टू ईच अदर। मैं सब कुछ एंड करके आया था। तो एंड करने के बाद यार वो जो भी करे अपनी जिंदगी में, दैट्स फाइन। एंड उनका 9 इयर्स का रिलेशनशिप था गाइस, इट्स अ वेरी बिग रिलेशनशिप। एंड एक शो के चक्कर में अगर उसने किया हो, वी डोंट नो, वी विल नेवर नो, ठीक है। बट सौरभ ने जो भी किया, आई थिंक ही ब्रोक इट ऑफ एंड देन उन्होंने किया। बट देयर इज अनदर एलिगेशन कि जब वो शो से बाहर आया, ही डिड स्पीक टू अपूर्वा बिकॉज दे यूज्ड टू लिव टुगेदर, लाइक दिस वाज एन एक्स ऑफ हिज, जो ये लोग साथ में रहते थे। तो साथ रहने में यू ऑब्वियसली यू शेयर योर थिंग्स, यू शेयर एन अपार्टमेंट टुगेदर, एंड मुंबई इज वेरी एक्सपेंसिव बाय द वे गाइस। मतलब रेंट संभालना इज क्वाइट एक्सपेंसिव। तो इन्होंने बात करी होगी, मतलब कुछ कुछ बोला होगा एक दूसरे से। तो आई थिंक वो कॉन्टेक्स्ट इतना बाहर आया है कि मतलब सौरभ वाज एक्चुअली डेटिंग दिस गर्ल एंड बाहर आके वो उससे मिला। आई डोंट थिंक सो, ठीक है। मुझे लगता है सौरभ अपूर्वा को छोड़ के ही वेंट टुवर्ड्स निहारिका, एंड अब ये दोनों साथ में हैं। इनको बहुत अच्छे अच्छे एड्स मिल रहे हैं और म्यूजिक वीडियोस मिल रही है। दैट शीशा आँखों में अकमल अली तो बले मेरे टुपटे पुट बुड 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 बुड। Apart from that, I think Niharika was also surrounded in a lot of controversy, and again, this is because of Diksha. Now, Diksha is also a contestant I've spoken about. Niharika was also in a ton of controversy surrounding, कि वो भी शो के टाइम पे डेट कर रही थी किसी और को। अगेन दिस इज सेड बाय दीक्षा, विच इज नॉट अ रिलायबल सोर्स एट ऑल। मतलब अभी भी दीक्षा के पास एक लीगल नोटिस आ गया गाइस कि शी शुड स्टॉप talking about the show, but this girl will never understand. So she's just another problematic soul. But Diksha has said so much shit about both of them. I think मतलब कुछ कुछ लोग आए हैं जिन्होंने बोला है कि their relationship is fake, their connection is fake, they were both dating other people during the show.
बट अभी जो मुझे दिख रहा है वो तो साथ में ही है एंड दे आर मेकिंग गुड कंटेंट विद वन अनदर, उनका बिजनेस मस्त चल रहा है, उनको प्रमोशंस मिल रही हैं। हु नोज उनमें से एक आ सकता है बिग बॉस में, निहारिका का चांस है टू कम टू बिग बॉस दिस सीजन फॉर श्योर। बट आई थिंक वो इतना कंट्रोवर्शियल नहीं है, मतलब वो इतना लड़ाई झगड़ा नहीं करती, इवन दो शो में दिखाया गया था कि शी वाज फाइटिंग विद गुल्लू, पर आई थिंक वो तो बड़ी फनी सी थी, मतलब वो जब भी लड़ते थे भाई भाई बहन टाइप था वो तो बिल्कुल भाई। बट आई विश देम ऑल द बेस्ट, क्योंकि ये कपल मुझे तो बहुत प्यारा लगता है गाइस। व्हाट डू यू थिंक? Do you like them together? Do you think they, like they fit together? Do you think the connection was fake, was real? Because according to me, this is my personal opinion, I think it was quite real. But game के time वो game का सोच रहे थे, बाहर आके they actually built a connection and अब वो साथ में है now, they're spending time with one another, getting to know each other, उसमें time लगता है यार। So, anyways, I hope you liked this video. This was episode 5 and I really hope you guys enjoyed it. Thank you so much. And please subscribe and like for more episodes. Thank you so much.